Welcome students. In today's lecture, we are going to continue the explanation of the essay All About a Dog written by A.G. Gardiner. So in the previous video, we have already started the essay and we have read that A.G. Gardiner tells his reader about an incident that happens on a bus journey. He tells us that once while he was traveling on a bus, then two women and a man get in the bus, and the younger woman was carrying a Pekingese dog. Okay, so obviously the dog was not allowed in the bus according to the rules. So consequently, a dispute begins between the conductor of the bus and the Pekingese party. Okay, so now let us continue. Someone pulled the bell violently. So someone, पैसेंजर्स में से किसी एक ने pulled the bell violently. Violently means in a very aggressive manner. Okay, so someone pulled the bell in a very aggressive manner. किसी ने बहुत ही violently bell को pull कर दिया. That brought the driver round to the door. और बेल सुनकर जो ड्राइवर था वो डोर की तरफ आ गया. Who is conductor of this bus? And then the driver asks, who is conductor of this bus? He said, and paused for a reply. None coming, but nobody replied. He returned to his seat and resumed beating his arms across his chest. Then, when nobody answered, he returned to his seat and he resumed. Resumed means फिर से शुरू करना. Then he resumed beating his arms. Beating यानी जोर जोर से मारना, है ना? His arms across his chest. Across means from one side to other side. That means उसने अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया, यानी फ्रस्ट्रेशन में. ओके, देयर वॉज नो होप इन दैट क्वार्टर. उस समय तो किसी आशा की किरण कोई नजर नहीं आ रही थी इस मैटर में. ओके, अ पुलिस मैन स्ट्रॉल्ड अप मीन्स यूं ही चहलकदमी करते हुए, घूमते घुमाते हुए आ जाना. दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉल्ड अप. ओके, सो अ पुलिस मैन स्ट्रॉल्ड अप and look in at the door. An avalanche of indignant protests and appeals burst on him. So, what is avalanche? Avalanche is हिमस्खलन. ओके, जो बर्फ के पहाड़ों पर बर्फ का एकदम से जो बहाव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हिमस्खलन. ऑफ इंडिग्नेंट, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग के लिए आया है. ओके, जो इस वक्त बस में जो कंडीशन थी उसके लिए. ऑफ इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट. इंडिग्नेंट मीन्स एंग्री. ओके, एंड प्रोटेस्ट इज विरोध करना. ओके, एंड अपील, यू कैन से अपील जिसे कहते हैं, या कंप्लेन यहाँ पर आप कह सकते हो, सुनवाई करने के लिए. बर्स्ट ऑन हिम. बर्स्ट मीन्स जैसे विस्फोट हो गया हो. तो जैसे ही वो पुलिस मैन आता है, वहाँ बस के अंदर से जैसे कोई एवलांश आ गया हो. किसका? एंग्री प्रोटेस्ट. एंग्री प्रोटेस्ट मीन्स बहुत ही गुस्से में लोग विरोध कर रहे थे एंड अपील कर रहे थे. बर्स्ट ऑन हिम, इन सब चीज़ों का जैसे उस पर विस्फोट हो गया था. ओके, वेल he has got his rules, you know. Now the policeman replies that the conductor has got his rules, you know. वो पैसेंजर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप जानते हैं कि उसके अपने रूल्स हैं. ओके, he said genuinely, that means in a very friendly manner, he replied to the passengers of the angry passengers of the bus. Okay, give your name and address. So the policeman asked for the name and address of the conductor. Okay, उसने पे सिर्फ इतना ही पूछा, अपना नाम और पता दो. That's what he has been offered. कि इतना ही था जो उसने ऑफर किया. And he won't take it. But कंडक्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. Okay, oh, said the policeman. And he went away. और वो चला गया. Took his stand a few yards down. और कुछ दूरी पर जाकर वो खड़ा हो जाता है. Down the street, सड़क पर, where he was joined by two more constables, पुलिस constables. Okay, वहाँ पर उसको दो और constables जो है वो join कर लेते हैं.
And still the little dog blinked at the lights, and the conductor walked to and fro on the pavement. Pavement means footpath. To and fro means इधर उधर, बैक एंड फोर्थ. ओके, जो कंडक्टर था वो इधर उधर चहलकदमी कर रहा था. एंड स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट्स. और जो डॉग था, जो कि बहुत इग्नोरेंट था, बिकॉज dog was not aware of the whole situation, this whole drama. Okay, he was totally ignorant, and he was blinking at the lights. वो तो अभी भी लाइट्स को देखकर सिर्फ पलके झपका रहा था. Like a captain on the quarter deck. Now, the conductor walked to and fro. So the conductor was walking to and fro. Okay, कंडक्टर जो था वो इधर उधर चहलकदमी कर रहा था. और किस तरह कर रहा था? Like a captain, जैसे कि कोई कप्तान हो. On the quarter deck. Quarter deck, what is quarter deck? Quarter is that part of the boat where the captain and other officers usually stand. बोट का वो हिस्सा जहाँ पर अक्सर जो कैप्टन होता है, कप्तान होता है जहाज का, वो और दूसरे ऑफिसर्स खड़े होते हैं. दैट इज कॉल्ड क्वार्टर डेक. ओके, क्लियर? इन द आवर ऑफ विक्ट्री, कब खड़े होते हैं? जीत की अपनी, जब वो विजयी पल होते हैं जब उनके, उस समय. ओके, तो इस समय जो कंडक्टर था वो भी अपने आप को, उसको भी विक्ट्री साफ साफ दिखाई दे रही थी, उसको अपनी जीत दिखाई दे रही थी. ओके, a young woman whose voice had risen high above the gale inside descended on him with an air of threatening and slaughter. एक young woman whose voice had risen high above the gale inside. What is gale? Gale is, you can say, tufan. Okay, the noise that was coming inside the bus. Okay, जो अंदर बस की जो noise हो रहा था, that is called गेल. यहाँ पर उसको गेल बोला गया है, जो एक तरह का तूफान बस के अंदर था उस वक्त सिचुएशन में. सो अ यंग वुमन हुज वॉइस हैड राइजन हाई अबव द गेल इनसाइड, कि अंदर जो तूफान था उससे ऊपर के पिच पर उस एक यंग महिला ने अपनी आवाज़ उठाई. ओके, डिसेंडेड ऑन हिम विद एन ईयर ऑफ थ्रेटनिंग एंड स्लॉटर. व्हाट इज स्लॉटर? स्लॉटर यानी मर्डर, एंड थ्रेटनिंग यानी धमकी देना. ओके, सो उस महिला की आवाज़ जो थी उस कंडक्टर तक किस रूप में पहुंचती है? इन एयर ऑफ, दैट मीन्स इन मैनर ऑफ थ्रेटनिंग, धमकाना, एंड स्लॉटर इज मर्डर. ओके, तो उस महिला ने उसको बहुत धमकी भरे स्वर में और एक मर्डर की धमकी देते हुए अपनी आवाज़ उठाई. ही वॉज इमूवेबल. ही वॉज इमूवेबल, वो तो अविचलित था. Who was immovable? The conductor was immovable. Okay, as cold as the night. The conductor was as cold as the night. Here cold जो यूज हुआ है वर्ड, वो उसके बिहेवियर के लिए हुआ है. ओके, his behavior was as cold as night. Okay, he was emotionless, right? He was cold as night and hard as the pavement, and his heart was as hard as the pavement. उसका जो दिल था वो तो कैसा कठोर था? फुटपाथ की तरह. और उसका जो बिहेवियर था वो उस रात की तरह ठंडा था. ओके, she passed on in a fury of impotence to the three policemen. Now the lady passed on in a fury. Fury means anger. Of impotence, दैट मीन्स पावरलेसनेस, यानी शक्तिहीन महसूस करते हुए उस एंग्री महिला ने वो तीन पुलिसमैन के पास जाकर बात करती है. हु स्टूड लाइक अ ग्रुप ऑफ स्टैचुअरी अप द स्ट्रीट watching the drama. But these three policemen, they were just standing like three statues on the street, and they were enjoying this whole drama, right? तो वो जो महिला थी वो जब पुलिसमैन से मदद मांगने जाती है तो वो देखती है कि तीनों पुलिसमैन जो हैं वो तो सिर्फ एक बुत की भांति सड़क पर खड़े हैं और ड्रामा देख रहे हैं. ओके, देन शी केम बैक. अब वो वापस आती हैं. imperiously beckoned to her young man who had sat a silent witness of her rage and vanished. Now the young woman, then she came back. अब वो वापस आती है. imperiously beckoned, that means imperiously means बहुत ही गर्व के साथ, बहुत अभिमान के साथ. ओके,
beckon means इशारा करना. Now she comes back. अब उसने वापस आकर किया क्या, उसके साथ जो व्यक्ति था, अपने साथ जो भी व्यक्ति था उसको इशारा करती है. हु हैड सेड, जो कि अब तक बैठा था. अ साइलेंट विटनेस, बहुत ही चुपचाप सिर्फ नज़ारे देख रहा था. विटनेस मीन्स गवाह, यानी कि वो सिर्फ देख रहा था कि क्या हो रहा है. ऑफ हर रेज, जो उसका आक्रोश था उस महिला का, वो अब तक चुपचाप बैठकर देख रहा था. तो उस महिला ने आकर क्या किया, उस अपने साथ जो आया यंग मैन था उसको इशारे से बुलाया एंड वैनिश्ड, और वो गायब हो गई, क्योंकि वो भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाई. अदर्स फॉलोड, दूसरों ने भी उनको फॉलो किया, यानी कि वो भी बस से उतर गए. द बस वॉज एम्प्टिंग, एम्प्टिंग मीन्स खाली होना. सो द बस वॉज एम्प्टिंग. Even the dashing young fellow who had demanded the number and who had declared he would see this thing through if he sat there all night had taken an opportunity to slip away. So gradually the bus was emptying. Okay, धीरे धीरे बस खाली हो रही थी. इवन द डैशिंग यंग मैन, वो जो बहुत नौजवान लड़का था जिसने कि ड्राइवर से उसका नंबर मांगा था. ओके, हु हैड डिमांडेड द नंबर ऑफ दैट कंडक्टर, सॉरी. ओके, एंड हु हैड डिक्लेयर्ड, और जिसने ये डिक्लेयर किया था दैट ही वुड सी दिस होल थिंग, कि वो उस पूरी स्थिति का जायजा लेगा जब तक कि वो वहाँ पर थ्रू इफ़ ही सैट देयर ऑल नाइट, अगर वो रात भर वहाँ रुकता है तो वो पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में रख के उस पर निगरानी रखेगा. ही टेकन एन अपॉर्चुनिटी टू स्लिप अवे, इवन वो व्यक्ति भी वहाँ से मौका मिलते ही गायब हो गया. Meanwhile, the Pakinese party were passing through every stage of resistance to abject surrender. Now, पैकनीज पार्टी, वो लोग जो कि पैकनीज डॉग के लिए आए हैं, मतलब जो लोग उस महिला और उस पैकनीज डॉग पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, दैट आर कॉल्ड पैकनीज पार्टी. ओके, सो रेसिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, यानी दे वर ट्राइंग टू रेसिस्ट टू एब्जेक्ट सरेंडर. एब्जेक्ट मीन्स बहुत ह्यूमिलिएटिंग होना. वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर जो था, वो आत्मसमर्पण था, वो करना नहीं चाह रहे थे, और वो उसका ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस मीन्स उसका विरोध कर रहे थे. वो चाह रहे थे कि वो इतनी जल्दी से हार ना माने. ओके, आई विल गो ऑन द टॉप, सेड द सील स्किन लेडी एट लास्ट. अब अंत में उस सील स्किन ड्रेस पहनी हुई महिला ने कहा कि मैं अब बस के ऊपरी हिस्से में चली जाऊंगी. You must not, I will. You will have pneumonia. Let me take it. This from the man. So the man says that you must not go on the top of the bus. I will go on the top of the bus because you will have pneumonia. Okay, so let me take it. So I will go on the top of the bus. Okay, certainly not. She would die with her dog. उसको निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए. वो अपने कुत्ते के साथ अगर ऊपर जाती है, बस जो थी वो डबल डेकर बस है. ओके, सो अगर वो ऊपर जाती है तो वो ठंड से अपने कुत्ते के साथ मर सकती है. When she had disappeared up the stairs, the conductor came back. Now the lady with the dog, see, she disappeared up the stairs. Okay, and then the conductor came back and he pulled the bell again and the bus went on. कंडक्टर वापस आता है और वो बैल को पुनः खींचता है और बस फिर से शुरू हो जाती है. He stood triumphant while his conduct was savagely discussed in his face by the remnant of the party. He stood triumphant. Triumphant means Vijay. Okay, so he was standing there triumphant while his conduct. What is conduct? Conduct means behavior. While he was standing there triumphant, so other passengers were discussing his conduct. They were discussing his behavior savagely. That means इन वेरी ब्रूटली, बहुत क्रूरता से वो उसी के सामने उसके बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे. ओके, इन हिज फेस, उसी के सामने, बाय द रेमेनेंट ऑफ द पार्टी. रेमेनेंट मीन्स जो रिमाइंडर, यानी कि बाकी बचे हुए जो पैसेंजर्स हैं जो कि उस महिला और उस कुत्ते के सपोर्ट में थे, वो उसी के मुंह पर उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में चर्चा करने शुरू कर देते हैं. देन द इंजन स्ट्रक वर्क. अब बस का इंजन खराब हो जाता है
and the conductor went to the help of the driver, and the conductor goes to the help of the driver. Okay, it was long job, it took a long time to fix this problem in the bus. Okay, and presently the lady with the dog stole down the stairs, or meanwhile the lady with the dog stole down the stairs. अब इसी बीच वो महिला बचते बचाते हुए उसकी निगाहों से अपने कुत्ते को लेकर नीचे आ जाती है, and re-entered the bus, and the woman re-entered the bus. Okay, when engine was put right, बस का इंजन जब ठीक हो जाता है, द कंडक्टर केम बैक एंड पुल द बेल, कंडक्टर आता है और फिर से बेल को खींचता है. देन हिज आईज फेल ऑन द डॉग, अब उसकी आंखें फिर से कुत्ते पर जाती है, एंड हिज हैंड वेंट टू द बेल रोप अगेन, एंड हिज हैंड वेंट टू द बेल रोप, उस घंटे की जो डोरी है फिर से उस पर उसका हाथ चला जाता है उस डॉग को देखते ही. The driver looked around. The conductor pointed to the dog. So now driver looked around that what happened. So the conductor pointed to the dog. अब कंडक्टर जो है वो कुत्ते की तरफ इशारा कर देता है. And the bus stopped again. And the struggle recommenced. अब जो पूरा संघर्ष था वो फिर से शुरू हो जाता है. Recommenced means पुनः प्रारंभ होना. Okay. And with all the original features. और वो ही चीज़ें फिर से शुरू हो जाती है. द कंडक्टर वॉकिंग द पेवमेंट, द ड्राइवर स्मैकिंग हिज आर्म ऑन द बॉक्स, द लिटिल डॉग ब्लिंकिंग एट द लाइट्स, द सील स्किन लेडी डिक्लेयरिंग दैट शी वुड नॉट गो ऑन द टॉप, एंड फाइनली गोइंग. तो वो ही चीज़ें फिर से रिपीट होने लगती हैं. कौन सी चीज़ें? द कंडक्टर वॉकिंग द पेवमेंट, कि कंडक्टर का पेवमेंट पर घूमना. ड्राइवर स्मैकिंग हिज आर्म्स ऑन द बॉक्स, कि उसको अपनी हाथों से बॉक्स को पीटना ड्राइवर के द्वारा. द लिटिल डॉग ब्लिंकिंग एट द लाइट्स, और वो जो डॉग था वो सिर्फ लाइट को देखकर ब्लिंक कर रहा था. द सील स्किन लेडी फिर से डिक्लेयर करती है कि वो बस की छत पर नहीं जाएगी, और फाइनली वो चली भी जाती है. दैट मीन्स कि पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होता है. ओके, आई हैव गॉट माई रूल्स, मेरे अपने नियम हैं. सेड द कंडक्टर टू मी. Now the conductor said this thing to the author. Okay, when I was the last passenger left behind, and he said while the author was the last passenger behind in the bus. Okay, तो जब वो बस में आखिरी पैसेंजर बचता है तो वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए ऑथर को कहता है कि मेरे अपने कुछ रूल्स हैं. He said he had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. अब वो ये जीत तो चुका है बट उसको लगता है कि उसको अपने ये जो तरीके हैं उसको किसी को तो जस्टिफाई करना चाहिए कि उसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया. ओके, he felt that he would like to justify himself to someone. Rules, I said. Now the author says, rules are necessary things. Definitely rules are necessary things. Okay, but there are rules and rules. बहुत rules होते हैं. किस तरह के? Some are hard and fast rules. He says that some rules are strict. बहुत ही कठोर नियम होते हैं. Like the rule of the road. जैसे कि रोड के जो नियम होते हैं बहुत सख्त होते हैं. Which cannot be broken. और आप उन्हें नहीं तोड़ सकते हो. Without danger to life and limb. अपनी जान को या अपने अंगों को खतरे में डाले बिना आप कभी भी रोड्स के जो रूल हैं उससे ब्रेक नहीं कर सकते. ओके, लिम्ब यानी आपके बॉडी पार्ट्स. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है. योर लाइफ एंड योर लिम्स मीन्स योर बॉडी पार्ट्स. ओके, बट सम आर ओनली रूल्स फॉर योर गाइडेंस. कुछ सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए बने रूल्स होते हैं. विच यू कैन अप्लाई और विंक एट. दैट यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर विश और यू जस्ट विंक एट. दैट मीन्स यू कैन साइलेंटली गिव योर अप्रूवल टू दैट. ओके, एज कॉमन सेंस डिक्टेट्स. जैसा कि आपका कॉमन सेंस उस चीज़ को मॉनिटर करने का परमिशन देता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन. ओके, लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग्स. ये सेम वैसा ही रूल है जो कुत्तों के बारे में बनाया गया है. ये भी वैसा ही रूल, क्योंकि जो
इस इंसिडेंट में जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से उस महिला को बस के ऊपर वाली पोर्शन में भेजना इतनी ठंडी रात में बहुत ही यू कैन से क्रूअल बिहेवियर था उस कंडक्टर का, राइट? दे आर नॉट whip. Whip means chabuk, okay? Put in your hand. So the rules are not whip put in your hand. To scourge यानी चाबुक मारना your passengers. So they are not made to just harass the passengers, okay? बट एन अथॉरिटी फॉर एन एमरजेंसी, ये सिर्फ आपको एक अथॉरिटी देते हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, ओके? दे आर मीन्ट टू बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पिरिट, आपको जो रूल्स की स्पिरिट है उसको समझना चाहिए, ओके? नॉट द लेटर्स, बल्कि उसके अक्षर जो लिखे गए हैं, जो उसकी लैंग्वेज है रूल्स की। मान लीजिए कहा गया है कि बस में कुत्ते अलाउड नहीं हैं, अगर आप उसके शब्दों पर जाएंगे तो शायद ये आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, राइट? बट आप देखें कि अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर फॉलो करते हैं तो आप थोड़े बहुत लीनियंट हो सकते हैं। फॉर द कंफर्ट एंड नॉट द डिस्कम्फर्ट of the passengers, because rules are made for the comfort of the passengers, they are not made for the discomfort of the passengers. You have kept the rules and broken the spirit, तुमने रूल को तो बनाए रखा है पर उसकी जो स्पिरिट थी उसको तोड़ दिया। You want to mix your rules with the little good and गुडविल गुड टेम्पर, तुम्हें अपने रूल्स के साथ थोड़ी बहुत गुडविल यानी कि अच्छाई और अच्छा व्यवहार भी दिखाना चाहिए। ही टुक इट वेरी वेल, उसने इस बात को बहुत सहजता से लिया। एंड देन आई गॉट ऑफ द बस, और मैं बस से उतर गया। ही सेड गुड नाइट क्वाइट एमिएबली, और उसने क्या कहा, पर प्यार से गुड नाइट। सो हियर एंड्स द एसे, थैंक यू।